Good morning, dear students. My name is Sudhesh Shukla, and I used to teach a subject electronics devices. Dear students, hope you are well nowadays. So, during our previous discussion, we have gone through the topic energy bands in intrinsic semiconductor. We have also covered the various properties. Means if I say that till date you know the various properties about the semiconductor and what basically this semiconductor is. You have idea somehow few of the properties and the facts you know well about this semiconductor. And during various lectures, we have also covered the classification of semiconductor as well as the types of semiconductor. Dear students, in my previous video lecture, I have told you basically there are two types of semiconductors available. What are those? First one was intrinsic semiconductor, which we have told that if the semiconductor is intrinsic, that means that is the pure form of semiconductor. Dear students, while talking about the extrinsic semiconductor, that means basically impure form of semiconductor. So today let's start with that extrinsic semiconductor, because today I will cover the topic energy bands in extrinsic semiconductor. I have told you the importance of energy band diagram. That is very much important just to understand basically the operation or how we are going to use the semiconductor material for our electronic devices. So let's see, I will tell you each and everything related to my topic. So let me write the topic first. Energy band, energy band diagram for extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Dear students, during our previous discussion, I have also told you that further this extrinsic, which is also called an impure form of semiconductor, is classified into two types. दो तरह से इसको हम कंसिडर करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को. What are those? N और P टाइप सेमीकंडक्टर. जय स्टूडेंट्स, मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि N टाइप सेमीकंडक्टर हम किसको कहते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं. But still before it, we have to know about this extrinsic semiconductor. इस extrinsic semiconductor के बारे में हमें जानना होगा, जिसको हम impure form of semiconductor कहते हैं. extrinsic semiconductor. Dear students, जो extrinsic semiconductor होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि हम जनरली कहते हैं कि impure form. क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज डोप्ड की जाती हैं, इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं. क्या जरूरत थी इम्प्योरिटी मिलाने की? क्यों हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से बात नहीं बन पा रही थी? क्या उससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एप्लीकेशंस नहीं ले पा रहे थे? तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर माय वर्ड्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू फ्यू डेज एगो दैट कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक खासियत होती है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट with the help of this semiconductor material we can control the conductivity. हम conductivity को control कर सकते हैं. In turn, if I say कि we are going to control the charge carrier, charge carriers को हम control कर सकते हैं if in our device we are using this semiconductor material. अगर हम semiconductor material का use कर रहे हैं तो we can control the conductivity. And I have also told you that if I am using the formula I is equals to NEABD, here the relationship of current with that of number of charge carriers. If somehow by using any type of material we are going to control this
number of charge carriers, that means we are going to control this electric current. And if we are going to control this electric current, that means indirectly we are going to control the conductivity. And this is the best future, this is the, we can say this is the beauty of semiconductor material, that we are going to control that. और जनरली मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज दैट कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करके आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, बट इफ यू आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके। जस्ट टेक द एग्जांपल, जैसे फ्रिज में है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फ्रिज है हमारे घर, उसके टेम्परेचर को इफ यू वांट टू कंट्रोल, और सिंपली जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एसी, एयर कंडीशन, जो एसी रूम्स में या जहाँ ऑफिसेज में लगे होते हैं, उन एसी में भी जो कंट्रोलिंग होती है, दैट इज बेसिकली डन बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नो डाउट वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हाई पावर एप्लीकेशन डिवाइस है, बट in that high power application device you are going to control the temperature, and where you are using the word control by using some type of device, that device will be electronic device, and that device, if it is electronic, that means almost 95% it is manufactured with the help of semiconductor materials। तो क्या हुआ कि हमारे पास पहले क्रिस्टल जो अवेलेबल हुए, दैट वॉज इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में वो अवेलेबल थे, एंड हमने उनको नोमेनक्लेचर किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, हमारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस आए। किस प्रकार से, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल कि फैन था, फैन से हमने अपने आप को, अगर हवा की जरूरत होती थी तो गर्मियों के मौसम में तो हम फैन का यूज करते थे, बट फैन के बाद और जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, एसी की नौबत आई, तो एसी के लिए हमें उसको कंट्रोल करना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब वो बात हमारी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से नहीं बन पा रही थी, तो फॉर दैट हमें लगा कि हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशंस ले पाएंगे। कब? जब हम उस प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिलाएंगे, उस इंप्योरिटीज से प्रॉपर्टीज वो क्रिस्टल दोनों की होल्ड करेगा। लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू पुट सम इंप्योरिटी इन दिस क्रिस्टल, इनिशियली दिस क्रिस्टल वाज इन प्योर फॉर्म, मैं इसको कुछ इंप्योरिटीज मिलाता हूं, तो द टेक्निक while we are going to impure this crystal is called doping। वो उस टेक्निक को हम बोलते हैं डोपिंग, जिसके थ्रू हम इसमें किसी अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डोप करते हैं, एंड द एलिमेंट विच इज डोप्ड इन दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपेंट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। सो वो हम एन और पी टाइप में यूज करेंगे, बताऊंगा मैं आपको किस तरह के डोपेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता लग गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो एप्लीकेशंस हमें चाहिए थे, दैट वाज नॉट गोइंग टू फिल विद दैट प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो उसके लिए हमें कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ अदर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी, और उनकी हेल्प हम इसमें डोपिंग करके ले पाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक का मैंने आपको बताया। फर्दर एक्सट्रिंसिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन वाज एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी कैन से एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड द सेकेंड वन वाज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के टाइप्स थे, एन टाइप और पी टाइप। तो हम पहले एन टाइप का केस लेके समझेंगे। बिफोर इट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ ए ग्रुप के, उनको हम कहते हैं दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और दे आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, उसमें कुछ इस प्रकार से एलिमेंट्स थे इन विच
The first one was कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये आपके बेसिकली फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स थे। एंड इफ आई राइट फॉर थर्ड ए, आई कैन राइट in this way. If I am writing here for fifth A group elements, it will be here I have mentioned few of the elements regarding third A group, fourth A group and fifth A group. If I am talking about this fourth A, जिसको मैंने बोला था कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, तो इनको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं जनरली कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन विच कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सेमीकंडक्टर। मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि व्हाई वी कांट से द कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। तो जनरली जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। रीजंस आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो सिलिकॉन जनरली और जर्मेनियम जनरली हम प्रेफरेंस देते हैं। एंड व्हाइल वी आर गोइंग टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात अगर मैं करूं तो थर्ड ए में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका मैं यूज करूंगा। या नाइट्रोजन को हम नहीं कंसिडर करते हैं, जनरली यूज नहीं करते हैं हम अपने डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज करते हैं। जनरली फास्फोरस, आर्सेनिक या लेड वगैरह हम यूज कर लेते हैं। तो सी मैंने आपको बताया कि फोर्थ ए वाले जो एलिमेंट्स हैं दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमने या तो थर्ड वाले एलिमेंट्स का यूज करना है, आइदर वी हैव टू यूज फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का। तो लेट्स सी, मैंने जनरल आइडिया आपको दिया था एन टाइप और पी टाइप के लिए। तो लेट मी ड्रॉ द क्रिस्टल डायग्राम फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक मटेरियल। First, we will have a look over N-type extrinsic semiconductor material. Let me draw the diagram. And dear students, I hope you remember that if the material which is being used for the formation of a crystal of semiconductor in which the atoms are having covalent bond, atoms के बीच में dear students covalent bond होगा। If we are talking about the semiconductor material, अगर हम डियर स्टूडेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सबको सिलिकॉन का एटम लेता हूं, आई एम कंसिडरिंग these atoms of silicon and I am just going for the formation of N-type extrinsic semiconductor. So what happens? What these atoms basically do with their neighbor atoms, I have told you. These atoms are of fourth A group, they belongs to fourth A group,
that why they will going to share their electrons with the neighbor atoms. What they basically do, they share the electrons with the neighbor atoms. Why they are going to share the electrons with the neighbor atoms? Dear students, because क्रिस्टल जो सेमीकंडक्टर का है वो चाहता है कि उसका क्रिस्टल स्टेबल हो। अगर इस सम यूनिवर्स में बात करें तो वो चाहता है कि उसका क्रिस्टल स्टेबल हो, एंड फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दैट एटम शुड हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेव बाय एनी हाउ। तो यहां पे बेसिकली वो कैसे कंप्लीट करते हैं? शेयरिंग करके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इफ आई एम गोइंग टू टेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ n type semiconductor, for that I have to take phosphorus atom here. phosphorus का एक एटम हमें यहां पे लेना होगा। Why? If we are going to make n type extrinsic semiconductor, for that we are in need of this fifth A group elements. हम इसमें किसी एक एलिमेंट का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पे फास्फोरस का यूज किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर फोर्थ ए ग्रुप की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या वैलेंसी उनकी हम कह सकते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं 4। इफ आई एम टेकिंग दिस फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट, दैट मीन्स 5 electrons are present in their outermost shell. 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट सी द ब्यूटी। मैंने डोपिंग की फास्फोरस एटम का इस सिलिकॉन के क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर का जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें मैंने डोपिंग की फास्फोरस एटम की, विच इज हैविंग 5 electrons in its outermost shell. 4 electrons is being shared with the neighbor atoms, and dear students, one of the electron is free here. One of the electron is available here. It may be located anywhere, here, anywhere, because the 4 electron of this phosphorus atom is going to share, or they are going to make a covalent bond with the neighbor atoms, but the 5th electron will remain free. 5th electron n type में free रहता है। And dear students, if we want a better current, for that we are in need of more amount of free electrons. I have told you that what basically this n or p is. If I am talking about the n, that means number of free electrons. If I am talking about the p, that means number of holes. तो जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाई? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी कोशिश रहती है और रहेगी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करें। जिस जनरेशन और रिकम्बिनेशन रेट की मैंने बात पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, उसी जनरेशन रेट की मैं बात करता हूं कि वी ऑलवेज वांट कि दैट जनरेशन रेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, हरदम ज्यादा रहे। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको 5th इलेक्ट्रॉन, या वी कैन से इट टू बी अ 5th इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर आपने कंडक्शन करानी है तो फॉर दैट आपको इस क्रिस्टल को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
and while providing the external energy the bond will break, this bond will break, और फर्स्ट वही बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी वीक होगी, और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे. दिस इज ऑल अबाउट एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन. 0 केल्विन पे डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं. लेट मी मोर प्रिसाइज यू बाय एनर्जी बैंड डायग्राम. लेट मी ड्रॉ हियर एनर्जी बैंड डायग्राम for extrinsic semiconductor material. So if I draw the energy band diagram, it will looks like I'm not going to represent the vertical axis with E because you are now habitual with that diagram. ये मैंने कुछ बनाया और इसको मैंने बोला कि दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड. यहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस है जो कि यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, जो कि वैलेंसी का काम कर रहे हैं, जो कि इस क्रिस्टल को स्टेबल बनाने का काम कर रहे हैं. यहां उन इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस है. एंड डियर स्टूडेंट्स, what we are seeing in this n type extrinsic semiconductor material कि हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है. यहां पे डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है. एंड आई होप यू रिमेंबर कि ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, जो एनर्जी बैंड डायग्राम की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली फॉर्म होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स से. वो एनर्जी लेवल्स किसके करस्पॉन्डिंग है? इन इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है. इन इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है. जो वाई एक्सिस मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पे जो हम एनर्जी को प्लेस करते हैं या कंसिडर करते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. किसकी वैल्यूज होती है? वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वैलेंसी के लिए. तो नो डाउट उनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट विल बी लेस. तो वो उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं. But if I am talking about when I am going to increase this temperature from 0 Kelvin to room temperature 300 Kelvin, what happens? Generally, crystal में जो bond बनाते हैं atoms, वो covalent bond break होते हैं, जैसे thermal energy उनको मिलती है. अब bond break होने के बाद electrons free होते हैं, और free electron, जिस free electron की हम बात करते हैं, no doubt उनकी energy is always greater than that with the electron which are responsible for the valency. जो कि वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनसे एनर्जी ग्रेटर होती है क्योंकि वो फ्री हुए हैं और एनर्जी गेन करके फ्री हुए हैं. तो उनके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हम यहाँ ट्रेस आउट करते हैं और उनको कंप्लीट बना के ये समझते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड फॉर्म हुआ है और यहाँ पे वैलेंस बैंड फॉर्म हुआ. बट डियर स्टूडेंट, दिस वाज, ये डिस्कशन था तब when we are talking about the intrinsic semiconductor, but now today we are going to cover this n type extrinsic semiconductor in which I have impured the impurity. मैंने डोपिंग की है. this is dopant phosphorus. यहाँ पे जो phosphorus है इसको हम कह रहे हैं this is dopant. और जिस टेक्निक से मैंने इस डोपेंट को इस क्रिस्टल में ले आया that was the technique was called doping और उसको हम कहते हैं डोपिंग. Dear students, जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं डोपेंट, और जिस टेक्निक के थ्रू उस डोपेंट को हम इस क्रिस्टल में प्लेस करते हैं, लोकलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपिंग. उस टेक्निक को कहते हैं डोपिंग. मैंने आपको बताया था कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात हम करते हैं तो दैट मीन्स फर्स्ट कि एटम्स के बीच की जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगी दैट विल बी सेम, फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन इज कि एटम्स सिमिलर होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे, बट व्हाट वी फाउंड हियर कि ये एटम्स तो सिमिलर टाइप के हैं सिलिकॉन के, बट इनसाइड दिस atom of silicon we found a phosphorus atom that basically belongs to other group. other property वो होल्ड करता है, अदर ग्रुप से बिलोंग करता है. तो यहाँ पे सेम टाइप के एटम्स नहीं है,
ये डिफरेंट टाइप का एटम्स है, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस इट और से कि दिस इज द इम्प्योर ऑफ सेमीकंडक्टर। इनसे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस लेते हैं, दैट्स व्हाई हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इस टेक्निक को अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सिलिकॉन के साथ कुछ अलग प्रॉपर्टी हमें यह फास्फोरस एलिमेंट भी देगा, विच वी विल सी लेटर ऑन। तो मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया एंड आई हैव मेड द बैंड विच इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अगेन if I am going to increase the temperature from T is equals to 0 Kelvin to T is equals to 300 Kelvin, what I will found, the electrons get excited and leave their ground state and jumps into the excited state. Excited state में वो आ जाते हैं, and here we will say this is nothing but the free electron. अब ये आपका free electron कहलाता है। मैंने टेम्परेचर 300 केल्विन पे जब कंसीडर किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो कि रिस्पॉन्सिबल थे वैलेंसी के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से कंप्लीटली फिल्ड था दिस वैलेंस बैंड, यहाँ से होल जनरेट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एंड वी से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का फॉर्मेशन हुआ या इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को ट्रेस आउट किया एंड व्हाट वी फाउंड दैट ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड अ कंडक्शन बैंड। उनको हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड। बट डियर स्टूडेंट्स, this was all about, this discussion was all about these electrons which are responsible for making the covalent bond or which are responsible or which are on the duty of fulfilling the valency, ये उनकी बात थी। but what about this fifth electron, इनकी एनर्जी लेवल को जब हम ट्रेस आउट करेंगे इन दिस एनर्जी बैंड डायग्राम, तो दैट विल बी बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल से उनको हम ट्रेस आउट करेंगे एंड वी विल से इट टू बी अ ईडी। हम सिंबलाइज करेंगे इनको, इस लेवल को ईडी से। जिस प्रकार से मैं टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के लेवल को सिंबलाइज किया था बाय ईवी एंड बॉटम लेवल को मैंने सिंबलाइज किया था बाय ईसी, सिमिलरली मैं इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे एनर्जी लेवल जो बनानी है that will be basically looks like यहाँ पे कंडक्शन बैंड के नियर अबाउट। क्यों कंडक्शन बैंड के नियर अबाउट डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है। इसकी अगर ये फ्री है तो नो डाउट इसकी एनर्जी कंपेरेबल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरेबली ग्रेटर है। एनर्जी इसकी ग्रेटर होने की वजह से ये कंडक्शन बैंड के नियर अबाउट ये लेवल हमें बनाना होगा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोनर एनर्जी लेवल। इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन या फास्फोरस या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं डोनर इंप्योरिटीज। इन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज कॉल्ड अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज और डोनर इंप्योरिटीज। क्योंकि इनका हर एक एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक ऑलवेज रखते हैं डोनेट करने के लिए। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटीज और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। सो अगर मैं एन टाइप को कंक्लूड करूं तो हमें यह पता लगा कि इफ वी आर गोइंग टू यूज द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, वी आर गोइंग टू यूज fifth group element as a dopant, and by doping technique, if I am placing this fifth group pentavalent impurity in our silicon crystal, we have a new type of semiconductor that is called n-type extrinsic semiconductor. And if you are looking forward towards the energy band diagram for n-type extrinsic semiconductor, it will be looks like this way. यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल आया, this is donor impurity level, वो इस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है। So dear students, this is all about intrinsic semiconductor. Similarly, I am going to make a p-type extrinsic semiconductor. I am just going to draw a p-type semiconductor material. I am just rubbing
and arranging the p-type extrinsic semiconductor. Let me adjust my trivalent impurity in this silicon crystal. मैं नया डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं आपको बता दूंगा कि पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे हम बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ऑल थिंग विल बी सेम. बस हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते वक्त एक बात का ध्यान देना है कि हमने थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट का यूज करना, इन विच आई एम गोइंग टू यूज दिस बोरॉन. हम बोरॉन का यूज करते हैं. आई एम गोइंग टू यूज दिस बोरॉन. मैं बोरॉन का यूज करता हूं. और हमें फिर से ध्यान देना होगा कि अगर वो एलिमेंट थर्ड ए ग्रुप का है, दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. बट यू फाउंड कि 4 एटम्स उसके नेबर में है प्लेस्ड, 1 2 3 4, एंड इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो बोरॉन एटम है उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसी वजह से इसको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. जिस प्रकार से फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था और उनको हम कहते थे कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सिमिलरली वी प्रोनाउंस्ड इट दिस बोरॉन टू बी अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. मैंने किसी भी टेक्निक के थ्रू मैंने डोपिंग किया इस डोपेंट को इन आवर सिलिकॉन क्रिस्टल, एंड व्हाट वी फाउंड कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स नेबर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे. बट व्हाट इज न्यू इन दिस बोरॉन कि सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन तो था, बट देयर यहां पे बोरॉन एटम के करस्पॉन्डिंग वैकेंसी थी. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वैकेंसी थी, एंड दैट वैकेंसी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थी. तो वी विल से दिस टू बी अ deficiency of electron. I will say that this to be a deficiency of electron. And dear students, I hope you know कि जब कभी भी हम कहते हैं कि deficiency of electron, that is called holes, और इसी को हम नाम देते हैं holes. If I have to define कि होल क्या है, जो चार्ज कैरियर्स की हम बात अपने सेमीकंडक्टर में या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बात करते हैं चार्ज कैरियर्स की, वो मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. तो होल्स को हम कहते हैं बेसिकली दीज आर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नो डाउट वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बट डेफिशिएंसी दैट मीन्स होल्स. मतलब यहां कहीं पे होल्स हैं, यहां कहीं बोरॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन तो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर बना रहे हैं. इसी को हम कहते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. और डियर स्टूडेंट्स, हमें पता लगा कि इस बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसके साथ शेयरिंग कर रहे थे. अगेन ये हम बात करते T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे इस क्रिस्टल की, बट व्हेन वी आर लुकिंग एट T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, व्हाट वी फाउंड, let me draw a new energy band diagram for this p-type semiconductor material. Again ये आपका conduction band, and this is all about valence band. This is conduction band, this is valence band. Again we are just considering this crystal, silicon crystal, p-type extrinsic semiconductor we are talking about. और मैं 300 केल्विन पे देखता हूं, again these bonds will break, electron will free,
and it will leave the vacancy here and jumps into the excited state. यहां पे आएंगे, सेम प्रोसेस होगा, T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, हमने इसको, इस लेवल को हमने डिनोट किया EV से, इसको हमने डिनोट किया EC से, बट व्हाट अबाउट दिस which is pronounced to be a hole, or we can say deficiency of electron. Dear students, जब इसकी हम बात करते हैं और इसके corresponding जिस प्रकार से मैंने n टाइप के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, similarly if I am going to draw the energy band diagram, energy band diagram for P टाइप सेमीकंडक्टर, तो मुझे इस होल के करस्पॉन्डिंग या इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो मैं लेवल ड्रॉ करूंगा, दैट विल बी बेसिकली लुक्स लाइक और विल ड्रॉन हियर एज EA। EA मैं रिप्रेजेंट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट इसको कंसिडर करता हूं, दोनों के बीच सेंटर पॉइंट अगर इसको मैं कंसिडर करता हूं, तो यू विल सी कि अगर बात एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होती है, तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नियर अबाउट होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, द एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल को मैं ड्रॉ करता हूं, वो वैलेंस बैंड के नियर अबाउट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां डेफिशिएंसी है, और नो डाउट अगर इसके तुलना में हम देखें तो एनर्जी विल बी लेस, एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम इस प्रकार से होती है कि वो वैलेंस बैंड के नियर अबाउट हम बनाते हैं, और वी विल से EA टू बी एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। डियर स्टूडेंट्स, ED is pronounced to be a donor energy level and EA is pronounced to be a acceptor impurity level। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे इसकी आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन्स अगर इस बोरॉन एटम को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो इसको किसी दूसरे नेबर के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेट सपोज ये इस नेबर से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग यहां हो गई, बट स्टिल यहां पे होल का क्रिएशन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी टाइप में होल्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर एटम शेयर करके अपने आप को, सारे एटम्स को स्टेबल बनाना चाहेगा। तो अगर मैं इस बोरॉन की बात करूं, तो बोरॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट करेगा, 3 तो अवेलेबल है, एक की रिक्वायरमेंट करेगा, क्योंकि वहां पे क्या था, एक्चुअल में होल था, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। वो नेबर के किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन उसने उधार लिया, उसने यहां फुलफिल किया, अब ये चारों कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, बट होल यहां पे आ गया, ये अपने साथ के नेबर से लेगा, फिर होल की पोजीशनिंग यहां हो जाए, यहां हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इस तरह हम देखेंगे इस ओवरऑल क्रिस्टल में मोशन किसका हो रहा है, मूवमेंट किसका हो रहा है, स्टूडेंट्स, होल्स का मूवमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी से कि इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं होल्स। एंड व्हाइल टेकिंग द एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम कंसीडर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। वो हम क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं। तो लेट मी राइट कि अगर एन और पी टाइप की हम बात करते हैं और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मैं बात करता हूं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो एन के केस में वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी के केस में वो होते हैं होल्स। और अगर मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो एन टाइप के केस में होते हैं आपके होल्स और पी टाइप के केस में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स,
एन टाइप का केस और पी टाइप का केस, वहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में जो करंट फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वहां पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं और नो डाउट उसके पास ऑलरेडी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होता है बिना बॉन्ड ब्रेक की। और अगर हम पी टाइप के फॉर्मेशन की बात करते हैं उसमें जो करंट फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू द होल्स, होल्स को हम कंसिडर करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी लेते हैं इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, इस सेमीकंडक्टर में करंट दोनों वजह से फ्लो कर सकती है, आइदर ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ बनाया, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एन टाइप का केस और एक पी टाइप का केस, जहाँ पे मैंने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को यहाँ पे बनाया, रीजन आई हैव टोल्ड यू, और डोनर इम्प्योरिटी लेवल्स के लिए यहाँ एनर्जी लेवल बनाया, द रीजन ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप के लिए बेसिकली एनर्जी बैंड डायग्राम और क्रिस्टल के थ्रू मैंने आपको समझाया। बस आपको ध्यान देना होगा कि इफ we have to manufacture p-type extrinsic semiconductor, for that we are in need of trivalent impurities। p-type के लिए हरदम trivalent impurity की आवश्यकता पड़ेगी और n-type के लिए हमें pentavalent impurities की आवश्यकता पड़ेगी। सो आई होप कि जो मैंने आपको बताया आपको वो समझ लगा होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट regarding any of the word or terminology I have used here, you can directly ask to me. So I hope also you will take care of yourselves. Thank you students. Thank you so much for today's lecture.